गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप अपने आप अगले महीने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। आज हम करेंगे फाइलम एनालिडा। एज द नेम इंडिकेट्स दैट एनालिडा इफ यू सी इज derived from annulus. Annulus means ring. Or annuli is ring. That means the individuals belonging to phylum Annelida, they have rings on their surfaces. Suppose this is their body, they have rings on their surface, as a result of which the whole body is divided into segments. So, if you see uh, in phylum Annelida, the organisms are divided into various segments as the name indicate. So, today we'll do general characters of phylum Annelida. Right? If you see that around 8700 living species of Annelida are there, and if you see they are the first true coelomates, right? They have a closed circulatory system, metameric segmentation with these characters which will be doing right now, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह जो फाइलम एनालिडा है अपने प्रीवियस फाइलर से एडवांस्ड भी है। करेक्ट। नाउ विल टेक ईच कैरेक्टर्स वन बाय वन। If you see that first character, if you, here we see habitat. Here you'll see that annelidans, they are found everywhere, right? They are terrestrial, they are aquatic, they are marine, they are freshwater form, right? They are parasitic. So you will see that they exist almost everywhere. If you see in case of marine, the very common example of marine annelid is Nereis. I'll be showing you one by one. If you see, this is Nereis. Nereis is marine annelid. Same way, if you see that this is Hirudinaria or leech, which is freshwater form. Correct. Aphrodite. If you see, this is Aphrodite. This is burrowing. It lives in burrows. If you see, this is Ketopteris. Although marine, but if you see, it makes a tube. Can you see? It is living in burrow. It is also known as tuberculous because it makes tube in on the seabed. And see, this is the animal. Correct. Some form are found in moist soil. Earth form, if you see, it is found in moist soil. Pontobdella. This is also a burrowing form found in moist soil. Second characteristic, if you see, is body segmentation. अभी हमने बताया ही था कि किस तरह से बॉडी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। बॉडी अगर आप देखो, इफ़ यू सी बॉडी आप देखो वर्म लाइक है, फ्लैट, कई बार फ्लैटेंड भी होती है। और जो ये अगर आप देखोगे कि बॉडी इज डिवाइडेड इन डिफरेंट सेगमेंट और हर एक सेगमेंट को बोलते हैं मेटामियर। करेक्ट। सो दिस वे इफ यू सी और ऑल्सो नोन एज सोमाइट्स. So this way, this is the typical characteristic of phylum Annelida, where the body is divided into various segments. Another characteristic is symmetry. Symmetry, as the animal are dorsoventrally a little bit flattened, and they are even if they are cylindrical, they can have only one symmetry, that is bilateral symmetry. Fourth characteristic is germ layers.
this is, the animals belonging to this phyla are triploblastic. Fifth characteristic is organization. If you see organization, they have almost all the systems. सभी इसमें systems हैं which consist of various organs. तो हम कहेंगे कि इसमें जो organization है वो कौन से level की है, organ system level of organization is there. अगर हम देखें body plan, तो बॉडी प्लान जो है इनकी कैसी है, ट्यूब विद इन ट्यूब. जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में क्या होता है, जैसे ये बॉडी वॉल है और बॉडी वॉल के अंदर सेम यहाँ पे क्या एलिमेंट्री कैनाल है. तो ये एलिमेंट्री कैनाल इस तरह लगता है कि एक छोटी ट्यूब जो है बड़ी ट्यूब के अंदर फिट कर दी हुई. तो इस तरह की प्लान को क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी इज बॉडी कैविटी. अभी तक हमने किया या तो एनिमल्स एसिलोमेट थे या सूडोसिलोमेट थे. सो ये जो एनिमल्स हैं, दिस फाइला, दिस इज द फर्स्ट फाइला विच हैज़ ट्रू सिलोम. इनको हम यूसिलोमेट भी बोलते हैं क्योंकि दे हैव ट्रू सिलोम. और ट्रू सिलोम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो सिलोम जो है किसी भी जर्मिनल लेयर से, पर्टिकुलरली मीजोडर्म लेयर से बना हो. दैट मीन्स जो कोई भी सिलोम है, इफ इट इज सराउंडेड बाय मीजोडर्म सेल्स वी कॉल इट एज ट्रू सिलोम्स. ऐसा नहीं है कि समटाइम्स इट कैन बी एक्टोडर्म ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द सिलोम इज सराउंडेड बाय मीजोडर्म सेल्स. सो इस तरह के एनिमल्स को हम बोलेंगे यूसिलोमेट. करेक्ट. सो और जो ट्रू सिलोम जो है, दूसरा नाम क्या है, इसको शीजोसिलोम भी बोलेंगे. ठीक है. कई बार क्या होता है, सिलोम का ओरिजिन दो जगह से होता है, या तो मीजोडर्म से या एलिमेंट्री कैनाल से. जब एलिमेंट्री कैनाल से होता है एंट्रॉन, यानी कि उस तरह के सिलोम को बोलेंगे एंट्रोसिलोम. जो सिलोम मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ उसको हम बोलेंगे शीजोसिलोम. सो हेयर इट इज शीजोसिलिक इन ओरिजिन. एंड द बॉडी कैविटी और द सिलोम इज फिल्ड अप विद अ फ्लूइड जिसको बोलेंगे सिलोमिक फ्लूइड. करेक्ट. और यहाँ पर जो सिलोमिक फ्लूइड है इट एक्ट्स एज हाइड्रोलिक स्केलेटन. यानी कि जो एनिमल की शेप है वो कौन डिटरमाइन करता है, जो सिलोमिक फ्लूइड जो कि कैविटीज में प्रेजेंट है. कई बार क्या होता है, एनालिड्स में सिलोम रिड्यूस्ड होता है. जैसे लीचीज है, उनकी सिलोम में देयर इज अ टिश्यू विच वी कॉल एज बोट्रॉइडल टिश्यू. सिलोम इज फिल्ड अप विद बोट्रॉइडल टिश्यू. तो हेयर सिलोम इज रिड्यूस्ड. ऑल्दो रिड्यूस्ड है पर क्या है, ट्रू सिलोम है. करेक्ट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. अभी मैंने आपको सेगमेंटेशन तो बता दिया था, पर व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. क्या होता है कि एक्सटर्नली तो मैंने बताया था एन्यूलाई है, इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. बट व्हाट हैपेंस इज दैट इंटरनली ऑल्सो, अगर हम बॉडी को खोल के देखें, देयर आर सेगमेंट्स. जब इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट्स कोइंसाइड करते हैं, इस तरह की सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखो, ये अर्थवॉर्म है. अर्थवॉर्म में ये क्या है, एन्यूलाई है, एक्सटर्नल सेगमेंट है. और ये अंदर क्या है, सेप्टा है. ये भी सेगमेंटेशन है, इंटरनल कैविटी को अलग अलग सेप्टा से अलग अलग कैविटीज में डिवाइड कर रहा है. तो इस तरह की सेगमेंटेशन जहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इंटरनल सेगमेंटेशन के साथ मैच करे या कोइंसाइड करे, उसे हम कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन. करेक्ट. सो दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा इज बॉडी वॉल. सी, जैसे जैसे एनिमल एडवांस करेगा, हर एक उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एडवांस करेंगे. हियर आई विल जस्ट शो यू दैट, जस्ट सी, दिस इज बॉडी वॉल ऑफ एनिलिड इन जनरल. इफ यू सी दैट there is no chitin, but if you see there is
द आउटर मोस्ट कवरिंग इज क्यूटिकल सिक्रेटेड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मल सेल्स। ये देखो ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स है, और एपिडर्मल सेल्स में बहुत सारे टाइप ऑफ ग्लैंड सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, बेसल सेल्स हैं और सेंसरी सेल्स भी हैं। So there are, you know, cuboid, columnar cells, columnar cells which are different types of gland cells, supporting cells, basal cells. Correct. उसके बाद if you see there are two the sets of muscles, circular muscles and longitudinal muscles. ये जो muscles हैं, if you see, they help in in producing the contraction or movement in the body. In due to the presence of these two type of muscles, body is highly contractile. Correct. Which again in turn is covered by parietal peritoneum. So this is the body wall of annelids. Next characteristic, if you see, is body appendages. So if you see that in Nereis, just see, this is Nereis, this is again Nereis. Can you see these appendages? These are known as parapodia. Just see on both the sides there are small appendages, and these appendages are paired, known as parapodia. इफ़ यू सी ये केवल नेरिस में प्रेजेंट है या क्लास पॉलीकीटा में प्रेजेंटेड है, और ये अनजॉइंटेड है. There are no joints in this, right, in parapodia. Correct. Next characteristic, if you see, is locomotory organs. अब जैसा कि अब आप देखो कि लोकोमोटरी और ऑर्गन्स में दिस इज, इफ यू सी, अर्थफॉर्म. दिखने में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अर्थफॉर्म के पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है. क्यों? क्योंकि इनके पास डीप सीटेड काइटिनस ब्रिसल्स होती हैं, जिसको बोलते हैं सीटे या कीटा या कीटी. if you see, I'll just show you what is the structure of, just see, this is one सीटा. कैन यू सी? और ये सीटा का स्ट्रक्चर आप देखो किस तरह से, केवल इसका जो नेक है, नेक पोर्शन है, ये ही बाहर निकल कर आता है. बाकी पूरा जो पोर्शन है उसका, जो कि नोड्यूल्स, ये नोड्यूल है, ये बेस है, ये डीपली सीटेड होता है इन द बॉडी, deep into the body. Just see, this is the body wall. Correct. So if you see, this is how the setae are present, and if you see these setae, they act as, they are their locomotory organ. Even parapodia भी मैंने दिखाया था ना. Just see, this is parapodia. parapodia के ऊपर भी जो है सीटे होते हैं, और ये सीटे क्या करते हैं, दिखने में बहुत ही माइन्यूट है, बट ये सरफेस पर स्टिक करते हैं, और ताकि जो है बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और जब रिलैक्स होती है, तो जब उस टाइम सीटे, एक अगर एंटीरियर पोर्शन की जो सीटे हैं वो डीप इनटू द ऑन टू द सरफेस सीटेड है, तो पोस्टीरियर पोर्शन के सीटे जो विड्रॉ हो जाते हैं और बॉडी जो आगे की तरफ मूव करती है. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में स्टेबल बॉडी को कौन रखते हैं? दीज सीटे. करेक्ट. सो दे आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्केलेटन. जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर कोई हार्डन स्केलेटन नहीं है या मिनरलाइज स्केलेटन नहीं है, कैलकेरियस या सिलिशियस स्केलेटन नहीं है. स्केलेटन, इफ एट ऑल, इज प्रेजेंट, दैट इज हाइड्रोलिक स्केलेटन इज प्रेजेंट. सो स्केलेटन या हार्डन स्ट्रक्चर इज नॉट present in annelids. Next characteristic, if you see, gut or alimentary canal. यहाँ पर alimentary canal जो है complete है. It starts with mouth and ends with anus. Correct. And if you see, हाँ, ये बात अलग है कि जैसे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊँ alimentary canal, इसकी
जस्ट सी, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म. ठीक है. अब आप देखो कि अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि मैंने बताया कि कोई हार्डन स्ट्रक्चर तो है ही नहीं. अर्थ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म इज हेल्ड बाय दी सेप्टा. सेप्टा हेल्ड करती है, या फिर जिसमें सेप्टा नहीं है उसमें मीसेंट्रीज इसको हेल्ड करती हैं एलिमेंट्री कैनाल को. या फिर जैसे नेरिस में जो है इस तरह सेप्टा नहीं है, तो नेरिस में एलिमेंट्री कैनाल को कौन होल्ड करता है? मीसेंट्रीज. या फिर जैसे लीच है, लीच उसको कौन होल्ड करता है एलिमेंट्री कैनाल को? बोट्रॉइडल टिश्यू. राइट. सो दिस वे इफ यू सी देर इज एलिमेंट्री कैनाल. और डाइजेशन हमेशा इंटरसेल्युलर होता है. इंटरसेल्युलर डाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर. यानी कि सेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन नहीं है. डाइजेशन अक्कर इन ऑर्गन और इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. करेक्ट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम, most of the annelids they show respiration by skin, जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. राइट. हालांकि कुछ एनालिड्स ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी शो करते हैं. ब्रेंकियल रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन बाय गिल्स. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल. इफ यू सी दिस इज एम्फीनाइट्राइट. एम्फीनाइट्राइट में ये पोर्शन दिखाई दे रहा है. दीज आर द गिल्स. कैन यू सी दिस पोर्शन? दीज आर गिल्स. सो एम्फीनाइट्राइट इज एन एनालिड विच respire by gills. Same way if you see Terebella, can you see the gill portion? So here also Terebella also respire by gills. So if you see, apart from these, except these two examples, the annelids respire by skin or they have cutaneous respiration. Correct. Next characteristic if you see is circulation or circulatory system. Here if you see annelids, they have a full fledged circulatory system. This circulatory system can be closed type or it can be open type. Closed means it has got blood vessels, जैसे कि अर्थवर्म में it has got hearts. ओपन टाइप में क्या है कि सिलोम में the circulatory fluid or the blood lies into the coelom and this or it lies in the open. So such type of circulatory system is known as open type of circulatory system. राइट. क्लोज टाइप में हम देखेंगे तो जैसे एनालिड्स है या पॉलीकीट्स है, नेरिस है, इन सब में क्या है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है. जबकि लीचीज है उनमें जो है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है. ब्लड इफ यू सी हेयर, द ब्लड कंसिस्ट ऑफ अमीबॉइड सेल्स इन बोथ द केसेस. It consists of amoeboid cells. Sometimes red plasma is generally red colored because of the presence of hemoglobin or another pigment known as erythrocyanin. Correct. Now we come to the next characteristic, that is excretion. Right. If you see those animals which do not have a well developed circulatory system or reduced circulatory system, they have protonephridia, which is not so common. Commonly if you see in case of annelids, they have an excretory unit which we call as nephridia. Nephridia are if you see segmentally arranged coiled tubular structures. मैं आपको जस्ट एक पिक्चर दिखाती हूँ. Just see, this is the structure of nephridia. If you see on one end there is an open end which lies in the coelom, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम if you see इस तरह funnel shaped ciliated funnel shaped mouth होता है यहाँ से.
राइट। और इसमें आप देखिए सीलिएटेड ट्रैक्ट है, अपाइकल पार्ट है, और ये जो पोर्शन है इट ओपन आउट थ्रू नेफ्रीडियोपोर। ये जो नेफ्रीडिया है, दिस नेफ्रीडिया कैन बी इंटीग्यूमेंट्री। अगर ये स्किन में प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे इंटीग्यूमेंट्री, और ये पोर्शन जो है बाहर बॉडी वॉल पर ओपन करता है, नेफ्रीडियोपोर। But there are nephridia present on the septum. There are nephridia present on the pharynx region. तो जो फेरेंजियल और सेप्टल नेफ्रिडिया वो कहाँ ओपन होते हैं, उनका जो नेफ्रिडियोपोर है सीलोम में, एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होते हैं, राइट। नेफ्रिडियोपोर वो एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होता है, और जो एंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया है वो इट ओपन आउटसाइड थ्रू बॉडी वॉल और बॉडी पोर्स, करेक्ट। Apart from this, annelids, they have certain cells known as chloragogene cells. क्लोरागोजन सेल्स में क्या है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके साइटोप्लाज्म में सर्टेन बॉडीज है जिसको हम कहते हैं क्लोरागोजोम्स। क्लोरागोजोम्स क्या करते हैं, एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर, क्लोरागोजन सेल्स स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरागोजोम्स। इट इज अज्यूम्ड दैट दे आर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी organ, accessory excretory organs. Chloragogene cells are also known as yellow cells, right. If you see those animals which are aquatic, they are amonotelic in nature, correct. So if you see that even if you एक्वेटिक फॉर्म्स, इफ एज आई टोल्ड यू अमोनोटेलिक होते हैं, जैसे नेरिस है, हिरुडिनेरिया है, जबकि जो लैंड फॉर्म है वो यूरियोटेलिक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अर्थवर्म का एग्जांपल लें, अगर व्हेन दे आर लिविंग इन डैम्प सॉइल, एट दैट टाइम दे आर अमोनोटेलिक। The nitrogenous waste, if you see, uriotelic, they are uriotelic. But when they are poorly starved, they do not have ample food, they become uricotelic. So if you see this way, they change their excretory waste material also depending on the availability of food. Next characteristic, if you see, is nervous system. Here if you see, I have just taken example of just this is nervous system of earthworm. Here you will see that there is circumpharyngeal ring. देखो इस तरह से आप ये देखो एक रिंग होती है, और ये देखो ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, दिस इज ब्रेन एंड दिस इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होता है, correct. So if you see that it consists of, this is circumesophageal ring and here lies ventral nerve cord, और हर एक segment में if you see there is a pair of ganglia this way, and this paired ganglia is covered by a covering which or this ventral nerve cord is covered in a covering. This covering is known as epineurium. एक common sheet होती है हर segment में, correct. So this is the type of they have nervous system. Next characteristic if you see is sense organs. They have different types of sense organs, as in they have tactile organs also. खासकर अगर आप देखेंगे ना, I'll just show you कि ये नेरिस है, जैसे ये नेरिस से जो प्रोस्टोमियम जो वेरी फर्स्ट सेगमेंट है तो उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम, और पेरिस्टोमियम के आगे जैसे ये फर्स्ट सेगमेंट है सपोज, इसको बोलेंगे पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम जस्ट एक सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम पर आप देखो इस तरह की टेंटिकल्स होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स, विच आर टेक्टाइल ऑर्गन्स, correct. Apart from this, annelids, if you see, they have photoreceptors also. Photoreceptors, yes, the name indicate they are sensitive to light. कई बार क्या होता है कि they have a structure called
lens. If you see, this lens cannot form image, but it can detect the changes in the intensity of light. उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इमेज जो है फॉर्म नहीं कर सकते. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी is asexual reproduction, or you can say reproduction. If you see, the prominent type of reproduction is sexual, but some of the annelids they show asexual reproduction also, जैसे कि सिलिस है. सिलिस में इफ़ यू सी कैसी होती है, फ्रेगमेंटेशन और ट्रांसवर्स फिशन होता है. I'll just write fragmentation and transverse fission. सिलिस में का एक बार तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखो, कैन यू सी, दिस इज सिलिस एंड दिस सिलिस इट शोज asexual reproduction by fragmentation and transverse fission. Otherwise, the most common type of reproduction here is sexual reproduction in annelids. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी आप देखोगे कि जो एनालिड्स हैं दे कैन बी मोनेशियस. मोनेशियस का दूसरा नाम क्या है, दैट दे आर बाइसेक्सुअल, और यू कैन से हर्माफ्रोडाइट. राइट. इसका जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो है earthworm. Right, earthworm is hermaphrodite. It has got both male and female reproductive system. Right, and leeches वो भी मोनेशियस है. अनदर इज इफ यू सी, जैसे नेरिस है. नेरिस जो है वो है डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल नेरिस जो है वो डिफरेंट होते हैं. इनको हम यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं. राइट, बट इफ़ यू सी नेरिस में जो गोनाड्स हैं वो हैं टेम्परेरी, और अर्थवर्म और लीचेस में जो गोनाड्स हैं दे आर परमानेंट. परमानेंट गोनाड्स आर फाउंड. डेवलपमेंट इफ़ यू सी इज डायरेक्ट. जैसे अर्थवर्म में जो डेवलपमेंट है या लीच में डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, यानी कि कोई लार्वल स्टेज नहीं है. बल्कि नेरिस में जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. दे अंडरगो लार्वल स्टेज जिसको हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा. सो कुछ इंडिविजुअल्स जो है इनडायरेक्टली ग्रो करते हैं बाय ट्रोकोफोरल लार्वा, एंड सम ग्रो डायरेक्टली. दे डू नॉट हैव एनी लार्वल स्टेज. अनदर कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी इज रीजनरेशन. जैसे कि आपने पिछले उसमें फाइला में किया था कि जो प्लेनेरियंस थे दे हैड वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, जबकि एनालिड्स में जो रीजनरेशन पावर है वो कम है. जैसे अर्थफॉर्म के जो फर्स्ट 50 सेगमेंट्स है ना, दे कैन बी रिस्टोर्ड. अदरवाइज इफ यू सी इफ सम डैमेज अकर इन द रिमेनिंग सेगमेंट्स दे कैन नॉट बी रिस्टोर्ड. राइट, सो यू कैन से दैट रीजनरेशन कैपेसिटी इज पुअर. बट एक और इंटरेस्टिंग फीचर प्रेजेंट है एनालिड्स में, जैसे कि ये देखो मैं दिखाती हूँ. ये है पोलैलोवर्म. पोलैलोवर्म के जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स हैं, पोलैलोवर्म वैसे तो वो है यूनिसेक्सुअल है, बट जो मेल और फीमेल है उनके जो पोस्टीरियर सेक्सुअली मैच्योर सेगमेंट्स हैं उनको बोलते हैं एपिटोक. तो ये पोलैलोवर्म इज एबल टू रीजनरेट एपिटोक्स, या जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स है ये बार बार रीजनरेट कर देते हैं, सो दैट दे कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. करेक्ट. अदरवाइज इन जनरल रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन पावर इज लेस. सो अगर हम एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करें एनालिड्स के जो है कैरेक्टर्स, so if the typical character is that annelids show metameric segmentation. तुम्हें पता चल गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है. जब एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट कोइंसाइड कर उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. दे हैव ट्रू सिलोम. ट्रू सिलोम के ओरिजिन क्या है, शीजोसिलिक इन ओरिजिन है. करेक्ट. अनदर इज दे हैव ट्यूब विद इन
ट्यूब प्लान, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जो है बॉडी वॉल इस तरह फिटेड है जैसे ट्यूब विद इन ट्यूब प्रेजेंट हो. बॉडी वॉल हैज़ गॉट बोथ सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ मसल्स जो कि उनकी बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ फुल फ्लेजेड सर्कुलेटरी system. Correct. They have special excretory structures known as nephridia. राइट. हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है बट वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है. करेक्ट. हेयर द नर्वस रिंग इज प्रेजेंट नोन एज circumpharyngeal ring or which we call as brain also. Correct. And last one is development is direct or indirect. Both the types of development are present. Now एक छोटा सा और टॉपिक हम इसके साथ लेंगे कि अब आप देखो ये हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की, तो एडवांसमेंट क्या है वर्म्स के ऊपर. अगर हम देखेंगे कि क्या एडवांसमेंट है, एक बार जस्ट इट वोंट टेक मोर देन 2 मिनट्स. फर्स्ट अगर आप देखोगे एनालिड्स जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं, जबकि जो वर्म्स थे वो दे वर जस्ट प्लेन सिलेंड्रिकल वर्म्स, देयर वाज नो सेगमेंटेशन. करेक्ट. दूसरा कि ये ट्रू सिलोमेट्स है और यू कैन से यू सिलोमेट हैं, जबकि वो कैसे थे, दे वर सूडो सिलोमेट. राइट. अनदर डिफरेंस इज यहाँ पर जो बॉडी वॉल है, इट बॉडी वॉल हैज गॉट सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जबकि वर्म्स में क्या था, ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल वॉज प्रेजेंट. अनदर डिफरेंस इफ यू सी, दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने बताया कि सीटे है या पैरापोडिया है, इस तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन था. और वर्म्स मोस्टली क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, इसीलिए इफ़ यू सी दे डिड नॉट हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स. थोड़ा बहुत जो है बॉडी को डॉर्सली या वेंट्रली थोड़ा सा बहुत मूव कर लेते थे, बट प्रॉपर लोकोमोशन जैसा कोई चीज़ नहीं था. अनदर कैरेक्टरिस्टिक इफ़ यू सी दैट यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है वो पेरिस्टाइल्सिस शो कर रही थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मसल्स. यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंटेस्टाइन है वो इट डजेंट हैव मसल्स, सो देयर इज नो पेरिस्टाइल्सिस इन worms, roundworms. Right. Another characteristic is these are the first animals which showed सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वस्कुलर सिस्टम जिसको हम कहेंगे. और यहाँ पर वर्म्स में इस तरह की कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं थी. अनदर इज यहाँ पर जैसे मैंने बताया नेफ्रीडिया था, नेफ्रीडिया है एज एक्सक्रीटरी यूनिट, वेयर एज हेयर इट वॉज लाइक नो सच स्ट्रक्चर वॉज प्रेजेंट इन वर्म्स. जो है इफ़ यू सी जो एक्सक्रीशन होता था वो सेलुलर लेवल पर ही होता था निमेटोड्स में. अनदर डिफरेंस इज यहाँ पे मैंने दिखाया था कि सेगमेंटल गैंग्लिया प्रेजेंट है, हर एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ गैंग्लिया वॉज देयर, वेयर एज इफ यू सी इट नो सच स्ट्रक्चर वॉज प्रेजेंट इन वर्म्स. अनदर थिंग इज दैट there is indirect development. It includes larval stage in Nereis, or you can say in polychaetes, that is trophophorus larval stage is present, whereas no such larval stage for dispersion was present in nematodes. Correct. So this was all for today. Today we did general characters. Another, if you see, we did how it is advanced as compared to how Annelida is advanced as compared to the previous phylum.